ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಹೊಡೆದಾರು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದು ನನ್ನದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಮೀರ್ ಸಿದ್ದಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹಲವಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಅದಾವ. ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಳಗೆ ಅವರು ಅದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. कि बेकसूर इंसानों को सजा मत दिया जाए। अगर समीर बुजापुर में उस वक्त थे तो उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दी। उसमें उन्होंने नजर आ रहे हैं तो अगर फायरिंग उन्होंने कर रहे हैं या फिर उनका ये हमारे तनवीर लोनी भाई से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के नाम के पीछे बिना जाने और बिना उनका ये करे, उनका नाम ना खराब करे। रिक्वेस्ट करती हूँ पूरे डिपार्टमेंट से, आईजीपी सर, आलोक कुमार सर, डीआईजी सर, सीबीआई क्राइम परवीन सूद सर, एसपी सर और हमारे सीपीआई सर और हमारे पीएसआई सर। तो उसके अंदर मेरे हस्बैंड का नाम है, तो मैं ये प्रूफ करूंगी कि समीर जिंदगी में ही थे, ना कि बुजापुर। अगर वो क्राइम वहाँ पर हुआ है तो जिसने किया है उसे पकड़कर कड़ी सी कड़ी सजा दो, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है। ನಮಸ್ಕಾರ, FM ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭಾರ್ಗವಿ. ಇದೀಗ ಬಂದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ನನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವುದೇ ಫೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀರ್ ಯರ್ಗಲ್ ಪತ್ನಿ ಸಮೀನಾ ಯರ್ಗಲ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದ ವೇಳೆ ಸಮೀರ್ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ ಯರ್ಗಲ್ ಅಂತ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಚಾರ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಸಿಂದಗಿ ಸಮೀರ್ ಯರ್ಗಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಗ ಸಮೀರ್ ಯರ್ಗಲ್ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆದ ಅವನು ಸಿಂದಗಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಳಗೆ ಅವರು ಅದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ, CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಿಂದಗಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾರು ಅದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆದ ಇದು ಆಗೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ SP ಸರ್, CPI ಸರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ PSI ಸರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪ ಆಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ ಸಮೀರ್ ಸಿಂದಗಿ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಏನಾರಲ್ಲೇ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಏನು ಬುಜಾಪುರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರು, ಏನಾರ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದರು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮೀರ್ ಸಿಂದಗಿನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರ್ರಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಅದಾವ. ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು FIR ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಿಂದಗಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾಕಿದು ಯಾರ ಮಾತು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿಕ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಾಗ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಕಳ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಮೀರ್ ಸಿದ್ದಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇದೆ. ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆದ, ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅದಾನೋ, ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜೈಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರು, ಘಾಯಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಹೊಡೆದಾರು, ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದು ನನ್ನದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ರಿ. ನಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಜಾಪುರ ಅವ್ರದ ಹಲವಾರು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಅದೇ. ನಂದು ಗಾಡ್ ಮೇಲೆ ಭರೋಸಾನೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ನಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಂದು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. मैं समीर यर्गल, समीर सिंदगी की वाइफ बात कर रही हूँ. मैं सभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे जो हैं CBI क्राइम सर, DJP आलोक कुमार सर, ADGP आलोक कुमार सर और DGP आलोक मोहन सर
और डीजीपी सीबीआई परवीन सूद सर से मैं और हमारे बुजापुर के एसपी सर और हमारे बुजापुर के सीपीआई और हमारे बुजापुर के पीएसआई सर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मौका वारदात पर जो कल एफआईआर होकर ये कर रहे हैं कि फायरिंग हुई थी, उसके अंदर समीर सिंदगी का भी नाम लिया जा रहा था, जो तनवीर लोनी बोल के है, जो एक न्यूज़ के थ्रू से हमें पता चला है कि उसमें चार्ली समीर और समीर सिंदगी और समीर का नाम लिया जा रहा है, वो गलत है। वो लड़का तनवीर लोनी से फिर से एक बार पूछताछ की जाए, क्या वो अपने आंखों से उन लोगों को देखा हुआ है। और मैं गुजारिश करती हूँ पूरे डिपार्टमेंट से कि ये फायरिंग कब से कब तक हुई थी। उस मौके पर समीर सिंदगी वहाँ पर नहीं थे, वो सिंदगी में थे, मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ और मेरे पास बहुत प्रूफ है। मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि वो सिंदगी में थे जब वो फायरिंग हो रही थी, उस वक्त वो बहरहाल बुजापुर में नहीं थे। मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि जुमे के दिन वो 12 बजे से लेकर 7 बजे तक सिंदगी में थे। सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि बेकसूर इंसानों को सजा मत दिया जाए। अगर समीर बुजापुर में उस वक्त थे तो उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप सब सीसीटीवी कैमरा चेक करें। आप जो रोड पर बहुत सारे हमारे सीसीटीवी कैमराज रहते हैं, बड़े बड़े कैमरा डिपार्टमेंट के कैमराज रहते हैं, वहाँ पर पूरे बुजापुर में अगर समीर सिंदगी नजर आ रहा है कल जुमे के दिन, तो उन्हें अरेस्ट करो और उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दो। वो अगर उसमें उन्होंने नजर आ रहे हैं तो अगर फायरिंग उन्होंने कर रहे हैं या फिर उनका ये है बोले तो, अगर उन्होंने नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी करे। हमारे तनवीर लोनी भाई से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के नाम के पीछे बिना जाने और बिना उनका ये करे, उनका नाम ना खराब करें। सभी हमारे साथियों से, हमारे माँ बहनों से, हमारे बुजापुर लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सच का साथ दें। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि समीर सिंदगी यहाँ बुजापुर में थे बोल को प्रूफ करो। बस उन्होंने नहीं थे, उन्होंने सिंदगी में थे बोल के मैं ये प्रूफ करती हूँ 100 to 100% मैं जो भी मेरे पास है मैं वो हमारे एसपी सर, हमारे पीएसआई सर को मैं जाके प्रूफ देकर आती हूँ। जो ये उनका नाम बदनाम कर रहे हैं मीडिया के जरिए कर रहे हैं या फिर कुछ बातें करके उनका नाम जो पोस्टपोन करके उनका ये उनके ऊपर झूठे झूठे केस डालकर उनको जो फंसाया जा रहा है, मैं वो भाइयों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें ना फंसाया जाए। अगर उनकी गलती उस मौका वारदात पर बंदूक की गोली चलते वक्त अगर वो एरिया के 40 किलोमीटर तक भी अगर वह समीर थे तो उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। इतनी सी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ पूरे डिपार्टमेंट से, आईजीपी सर, आलोक कुमार सर, डीआईजी सर, सीबीआई क्राइम परवीन सूद सर, एसपी सर और हमारे सीपीआई सर और हमारे पीएसआई सर। थैंक यू। कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है जी, वो यहाँ पर बुजापुर में नहीं थे बोलकर, फिर क्यों आप अभी आप तक अभी हम को हैंडल नहीं किया? हमारे को अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि वो किसके किसके नाम पे है बोल के, तो मौका अब वो एफआईआर हुआ है बोल के हमें सुनने में आया है, तो उसके अंदर मेरे हस्बैंड का नाम है। तो मैं ये प्रूफ करूंगी कि समीर सिंदगी में ही थे, ना कि बुजापुर में थे। अगर आप मैं इतना चैलेंज कर रही हूँ तो आप खुद सोचिए कि मेरे पास कुछ होगा। मैं 1 बजे से लेकर 7 बजे तक उन्होंने जिंदगी में थे बोल के मैं प्रूफ कर सकती हूँ। और मैं ये पूरा जो प्रूफ है मैं डिपार्टमेंट को देखूँ और डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि इस मौका वारदात पर पूरे सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए, हर सीसीटीवी कैमरा चेक करें, क्योंकि अब तो हर कोई एक छोटा छोटा दुकान वाला भी सीसीटीवी कैमरा रख रहा है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ मैं खास कर हमारे एसपी सर से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत अच्छी तरह से की जाए। अगर उनकी सजा उन्होंने अगर दिख रहे, अगर चलो उन्हें हेलमेट पहने तो उनके हाथों के नाखून जूम कर देख सकते हैं, पाँव के नाखून देख सकते हैं, उनका बॉडी का शेप देख सकते हैं। तो बिना बेकसूर इंसान को सजा देने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ बस। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर उस वक्त थे तो उन्होंने प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करो सीसीटीवी कैमरे के जरिए। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर वो क्राइम वहाँ पर हुआ है तो जिसने किया है उसे पकड़कर कड़ी सी कड़ी सजा दो, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है। अगर वहाँ पर कौन भी हों दे उनको हर कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ना कि बेकसूर लोगों को मिलनी चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूँ उसकी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में थे, मुझे पता था, मेरे पास अब प्रूफ भी है। और दूसरी बात ये जो तनवीर लोनी है जिसने कहा है कि वो मैंने देखा उनको दूध डेयरी करने ठहरे, अभी मैं न्यूज़ में देखी दूध डेयरी के पास भी जो हमारा ये रहता है ना वो सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पर फोकस करे और हर एक चीज़ बाल सी बारीक सीबीआई क्राइम बुलाकर चेक किया जाए बस। अभी आप कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है? हाँ, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें एक जाल में फंसाने, उनको ऑलरेडी धमकियाँ मिल रहे हैं। मतलब है
वो उसकी तरह भी तू भी मरेगा बोल के उनके बहुत सारे दिन से उनको धमकियां मिल रहे हैं। उनको फंसाने का पूरा प्लान भाकर बैठे हुए हैं ये लोग। और ये जो भी कर रहे हैं अल्लाह के वास्ते ना करे। मैं तो यही गुजारिश करूंगी, क्योंकि जो हालत आज मेरी हो रही है वो किसी और की भी हो सकती है कल। तो सच के वास्ते लड़े। अगर वो सच है, अगर आपके पास वहाँ सीसीटीवी कैमरा में अगर नजर आ रहा है समीर सिंदगी वहां पर है, तो मैं खुद ही सजा दो बोल के मांग करूंगी। अगर नहीं है बोल के मैं प्रूफ करूंगी, तो आप क्या करोगे? बाइज्जत बरी करना, यही आपका काम है। खामा खा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर किसी भाई को समीर सिंदगी की तरफ से तकलीफ हुई है तो उन्हें बड़ी सी बड़ी सजा दो, लेकिन अगर उन्होंने नहीं है तो बाइज्जत बरी करो। मेरा यही मुद्दा है। और उन्होंने नहीं है बोल को मैं कॉन्फिडेंस ही बोल रहा हूँ, और मैं प्रूफ भी आपके सामने पेश करती हूँ। और मैं सब लोगों का नहीं बोल रही, मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड का बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरे पास प्रूफ है, मैं इतने एविडेंस के साथ बोल सकती हूँ, और मैं प्रूफ करके ही रहूंगी। इतना मुझे अपने पर भरोसा है। और ऑलरेडी एफआईआर करे हैं, ये मुझे अभी मालूम चला है। तो एफआईआर होने के वास्ते मैं भी प्रेस श्री गोविंद कारजुल और श्री साई होम नीड्स भारत गैस की तरफ से सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।